یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسلام کی حقانیت، اس پیغمبر اسلام کی صداقت کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ آج تک سب سے زیادہ اگر کسی مذہب کے خلاف لکھا گیا، سازشیں کی گئی، یورشیں کی گئی، تدبیر کی گئی، مکاری کی گئی، پلاٹنگ کی گئی، وہ ہے اسلام۔ آج تک اگر کسی پیغمبر کے خلاف لکھا گیا ہے، وہ ہے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نہ اسلام میں کمی آئی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی عزت میں کوئی کمی آئی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے کہا کہ دیکھو اسلام اللہ کے پاس ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کے مقام و مرتبے کو اونچا کیا ہے۔ واللہ جو اعلیٰ اور عرفہ مقام والے ہیں، اپنے نبی کے مقام و مرتبے کو اونچا کیا ہے، کون ان کو نیچا کر سکتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وقال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. برادران اسلام، پردانشین، خواتین ملت، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 پڑھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ اے نبی آپ کے بارے میں یہ کفار و مشرکین مکر و سازش کرتے ہیں، پلاٹنگ کرتے ہیں، مکاری اور عیاری سے کام لیتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف تدبیریں اپناتے ہیں۔ کبھی نبی کے خلاف اناپ شناپ باتیں کرنا،
कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कार्टून बनाना, तो कभी फिल्में बनाना, तो कोई कमेंट करना, ताकि आई नबी आपके खिलाफ मकर फरेब से काम ले। उस जमाने भी ये लोग यही बात करते रहे, लियुथबितूक, ताकि आपको कैदो बंद में डाल दें, और यक्तुलूक, या आपको कत्ल कर दें, और युखरिजूक, या आपको अपने मुल्क से निकाल बाहर कर दें। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और याद रखें, ये लोग मकर कर रहे हैं, अल्लाह ताला भी इनकी तदबीरों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, अल्लाह भी अपनी तदबीर में है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन तदबीर करने वाला है। हाज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने यह ऐलान किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद, आपकी आमद मुबारक, आपकी विलादत बसादत, आपकी नबूवत, आपके फरमोदात, आपकी तालीमात, आपके फैसले, आपके गज़वात, आपकी हर चीज बाइसे रहमत है, बरकत है, याद रखो। लेकिन ये कोताह चश्म को क्या पता है, इनको क्या पता है। वाकई माने में अगर आप चश्मा उतार के देखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर चीज में आपको रहमत नजर आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, किरदार, आपके फरमोदात, आपके एहसानात क्या क्या हैं, हमने इससे पहले बारहा मालूम किए हैं, मुझे उसमें जाना नहीं है। पिछले दिनों हमारे मुल्क के एक मजहबी पेशवा ने और एक सियासी लीडर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। ये मुसल्लम उसूल है, कुरान भी कहता है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम उन लोगों को गाली मत दो अल्लाह को छोड़ के जिनकी ये इबादत करते हैं। अगर तुम उनको बुरा भला कहोगे, वो दुश्मनी और अदावत में आकर तुम्हारे रब को गाली गलोच करेंगे। तुम्हारा रब तो बरहक है। जब इस्लाम ये कहता है कि देखो माबूदाने बातिला को गाली मत दो, तो चे जाए कि माबूदे बरहक को और रहनुमाए और कायदे बरहक को, रसूल बरहक को, रसूल करीम को, और ये इंटरनेशनल लॉ भी है कि क्यों कोई किसी मजहबी रहनुमा को गाली गलोच ना करे। इस्लाम बहुत पहले ही बता दिया है, और हमारे मुल्क के कानून में भी पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने यह पास भी किया है। ये अमल होना ना होना ये और बात है, लेकिन है कि कोई किसी मजहबी रहनुमा पर किसी तरह के कोई बुरे कमेंट नहीं करेगा। हाज़रीन, यह और बात है, उसके बावजूद भी ये बातें चल रही है। ये क्यों इस तरह करते हैं पता है? पहली बात तो ये है, ये इस्लाम और पैगंबर इस्लाम से बौखला गए हैं, परेशान हैं। इतना सब किया जा रहा है, फिर भी ये दरख्त ऐसा है जितना काटोगे उतना हरा होगा, जितना काटोगे उतना हरा होगा। इनको मिटाने की इतनी साजिशें, कोशिशें, यूरिशें, तदबीरें, प्लॉटिंग, मक्कारियां, अय्यारियां हो रही है, फिर भी थमने का नाम नहीं है। अल्लाह अकबर। इसीलिए ये बौखला गए हैं, परेशान होकर बौखला के ये काम करते हैं। और दूसरी वजह जिसमें हम भी शामिल हो जाते हैं, वो शोहरत चाहते हैं, अपने आप को शाइन करना चाहते, मशहूर करना चाहते हैं कि नबी और इस्लाम, पैगंबर इस्लाम पर कुछ कहें और उसके बाद देखो बर्क तेजी के साथ, बर्क रफ्तारी के साथ सारे मीडिया में आ जाए, सारी दुनिया में मशहूर हो जाए। वो मशहूर होना चाहता है। सुभान अल्लाह,
तुम्हें शोहरत पाने के लिए हमारे नबी और आमिना के दुलारे, हमारे प्यारे अल्लाह तबारक ताला के रसूल का सहारा आखिर कर लेना पड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाँ, हमारे ये नबी तुम जैसे लोगों के लिए भी रहमत है, तुम अपनी शोहरत के लिए भी हमारे नबी का नाम इस्तेमाल करते हो। लेकिन हमें चाहिए कि शोहरत ना दे, हम क्या करना है? उनको इग्नोर करना, कानूनी कार्रवाई करना, मगर कानून को हाथ में नहीं लेना। क्या कहा? कानूनी कार्रवाई करना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, नहीं। जो लोग मिल्लत के जिम्मेदार हैं और मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदार हैं, उनको चाहिए कि आपको चाहिए कि उन तक बात पहुंचाएं और वो कानूनी कार्रवाई करें, और किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप हर मीडिया में उसको शेयर ना करें, व्हाट्सएप में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंटिंग मीडिया में, और यहां वहां हर जगह पर उसको शेयर ना करें। क्यों? वो चाहता है मशहूर होना और आप उसको तशहीर कर रहे हैं, उसको शोहरत दे रहे हैं। मत पहुंचाओ, मत शेयर करो, क्योंकि तकलीफ होती है, सुनते हुए तकलीफ होती है। और एक तीसरा मकसद इनका यह होता है, वो एक सियासी दाव कि मुसलमानों को भड़काया जाए, भड़काया जाए। इसकी वजह से और मुसलमान रोड पे उतरेंगे, भड़काएंगे और इनको आपे से बाहर किया जाएगा और कोई गलत कदम उठाएंगे, सारा ये दब जाता है। मुसलमान के नौजवान ऐसा किया, वैसा किया, सारी मीडिया में आ जाएगा और उसके बाद इसको अंदर कर दिया जाएगा, मुसलमानों को बदनाम किया जाएगा। देखें, अभी तो इनकी हुकूमत नहीं तो ये हाल है, अगर ये लोग आ जाए तो क्या ना करेंगे। इसलिए हमें वोट डालो, हमें वोट डालो। समझ में आ रही बातें? इसलिए हमें क्या करना है? आपे से बाहर नहीं होना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में, मक्की जिंदगी में कितना परेशान किया गया, मारा गया, पीटा गया, आपके चेहरे पे थूका गया, आपकी इंसल्ट और तौहीन की गई। लेकिन आप कहते थे सब्र करो, सब्र करो, सब्र करोगे कामयाब हो जाओगे। और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। कानून को हाथ में नहीं लेना, आपे से बाहर नहीं होना। आप जानते कि पिछले दिनों में हमारे शहर में ही जो हाल हुआ था, केजीएलडी का वाकया आप जानते हैं। आज तक नौजवान अंदर हैं, लेकिन कमेंट करने वाला तो है, अल्लाह ताला सजा देगा, याद रखो। लेकिन क्या होता, मामला चौपट करते हैं और आइन इलेक्शन के वक्त में या किसी सियासी दाव और पेच के लिए ये पत्ता ये खेलते हैं और हम लोग उनकी दाव में, उनके पेच में, उनकी तदबीर में और उनकी मक्कारी में और उनकी जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए नौजवानों याद रखो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह आल इमरान में, वइन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करोगे, एहतियात करोगे, तकवा और परहेजगारी की जिंदगी अख्तियार करोगे, तो याद रखो ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, इनके मकरो फरेब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या करना है? सब्र करना, कंट्रोल करना और फूंक फूंक के कदम रखना है, अल्लाह से रिश्ता जोड़ना है। अल्लाह तबारक तआला उनको देख लेगा, अल्लाह देख लेगा। अल्लाह ने सूरह हिजर आयत नंबर 95 में फरमाया, इन्ना कफैना कल मुस्तहजीन, ऐ नबी आपकी इंसल्ट करने वालों से हम काफी हैं, हम काफी हैं, हम देख लेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिसके लिए काफी हो उसको कौन चखे भाई। अल्लाह जिसको रखे फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करें, हाँ वो चिराग क्या बुझे जिसकी हिफाजत खुदा करें। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं। इस्लाम की हक्कानियत, इस पैगंबर इस्लाम की सदाकत के लिए इतनी बात काफी है। आज तक सबसे ज्यादा अगर किसी मजहब के खिलाफ लिखा गया, साजिशें की गई, यूरिशें की गई, तदबीर की गई, मक्कारी की गई, प्लॉटिंग की गई, वो है इस्लाम। आज तक अगर किसी पैगंबर के खिलाफ लिखा गया है, वो है पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ना इस्लाम में कमी आई है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आपकी इज्जत में कोई कमी आई है। कैसे हो सकता है? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व रफअना लका जिक्रक, अल्लाह ने कहा कि देखो इस्लाम अल्लाह के पास है। ऐ नबी हमने आपके मकाम मर्तबे को ऊंचा किया है। वल्लाह
जो आला और अरफा मुकाम वाले हैं, अपने नबी के मुकाम और मर्तबे को ऊंचा किया है, कौन उनको नीचा कर सकता है? व रफअना लका जिक्रक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन, सबसे पहले ऐसे जो लोग कमेंट करते हैं उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, और फिर हमारे लिए आपको क्या पैगाम है वो भी देना चाहते हैं। जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं उनसे हम कहेंगे कि बराए मेहरबानी आप कमेंट करने से पहले इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम की स्टडी कीजिए, आप पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़िए, चश्मा उतार के पढ़िए। यहां तक तो बाज लोग इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, तालीमत इस्लाम और कुरान के खिलाफ स्टडी शुरू किए, और अल्लाह ने उनको हिदायत दे दिया है, आओ आप पढ़ो, आपको हम दावत देते हैं, इस्लाम आपके लिए भी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए भी है, कुरान भी आपके लिए है, और ये सब कुछ आपके लिए है। आप आओ पढ़ो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ और आ जाओ। और ना फिर क्या कहेंगे मालूम? हमारी बात से आप कह रहे हैं कि अल्लाह आपके लिए है, नबी आपके लिए, कुरान आपके लिए, तो मस्जिद भी हमारे लिए, मस्जिद हमको दे दो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मस्जिद हमारे लिए, हमको दे दो। मस्जिद मुसलमानों के लिए है, अल्लाह रसूल के मानने वालों के लिए है। आप अल्लाह रसूल के मानने वाले बन जाओ, आ जाओ, किसने रोका है? कोई रोकने वाला नहीं है। आप अगर ना भी सही है, हाँ हक के तौर पर तो नहीं, अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद अल्लाह के लिए है और अल्लाह के बंदों की इबादत के लिए है। हाज़रीन, एक किताब है और उस किताब का जो नाम है, हेडिंग है, बहुत प्यारा है, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इफ यू नो हिम यू विल लव हिम। क्या है? इफ यू नो हिम यू विल लव हिम। वाकई माने में आपको यह पैगाम देते हैं, प्लीज स्टडी, आप पढ़िए। इफ यू नो हिम यू विल लव हिम। अगर आप नबी को पढ़ोगे, मालूम करोगे, नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाओगे। आइए मैं आपको एक दो वाकयात सुना देता हूं, और वाकयात कोई ऐसे बेबुनियादी वाकयात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको सही मुस्लिम के हदीस नंबर 868, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी, नाम है उनका दिमाद, उनका वाकया बयान किया है। दिमाद ये कबीला अज़द शनु के बहुत बड़े हकीम और बहुत बड़े फिरासत वाले इंसान थे। जब वो मक्का आए तो मक्के के लोगों ने उनके कान में ये भर दिया, यहां आए हो होशियार रहना, चौकन्ना रहना, क्योंकि मोहम्मद नामी एक आदमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां आए हैं और वो लोगों में तफरीक डालते हैं, जादूगर हैं, या उन पर जिन्नात का असर हो चुका है, पागल और दीवाने हो चुके हैं। ये कान भर दिए। देखो, कान भरना ये काम होता है, हकीकत नहीं है। दिमाग ने ये सोचा, मैं एक बेहतरीन राकी हूं, यानी जादू जिन्नात को दूर करने का वो जमाने जाहिलियत से काम करते थे, रुकिया करते थे। मेरे पास तो इलाज है, क्यों ना चलो जाके मालूम करते हैं। यह आपके लिए गुजारिश है, क्यों ना आप मालूम कर लें, आइ के मालूम कर लें। आपके दिमाग में जो बिठाया गया, बताया गया, बराए मेहरबानी आप आए और आके मालूम कर लें। दिमाग ने आके मालूम किया कि चलो जाके मालूम करते हैं, और उन बेचारे का इलाज कर लेते हैं। इलाज के लिए आए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद कहा कि देखो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना कि आप पर जादू का असर हो गया है, आप पर दीवानगी आ गई है, एक काम करें, मैं बेहतरीन इलाज करने वाला आपका इलाज कर देता हूं। नबी ने कहा कि अच्छा, लोगों ने ऐसे बताया है, मुझ पर जादू का असर हो गया है, बैठो बैठो। बिठाए, और बिठाने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबाए मसनून पढ़ा। अभी कुरानी आयत भी नहीं, आपने सिर्फ क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। इतना कहना था। उस आदमी ने कहा रुक जाओ, ये जो तुम्हारा कलाम है कोई दीवाना आदमी पढ़ नहीं सकता।
हाँ, और ये कोई जादूगर का कलाम भी नहीं है। ऐसा नहीं है कोई जिस पर जादू का असर हो गया वो ऐसा कलाम कहे। दोबारा पढ़ो, दोबारा नबी ने सुनाया, फिर कहा रुक जाओ, दोबारा पढ़ो, तीसरी बार अल्लाह के रसूल से सुना। हाँ, देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, हाँ, कितने अच्छे अंदाज में दोबारा से बारा सुनाया। सुनाने के बाद सादबी ने कहा अल्लाह ने मुझे अकल दिया, शऊर दिया, दिमाग दिया, अपने अकल और शऊर और दिमाग को इस्तेमाल करो, ये चश्मा उतार के पढ़ो, आपको पता चल जाएगा हक बात क्या है। वो इस्लाम कबूल कर लिए, आए थे नबी का इलाज करने, अपना इलाज करके वापस चले गए। हाँ, याद रखो मेरे भाइयों, इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं, इफ यू लव हिम, इफ यू नो हिम, यू विल लव हिम। दूसरा वाकया सुन ले, दूसरा वाकया सही बुखारी बिदाया और निहाया का वाकया है। साहबी रसूल तुफैल बिन अमर दोसी रदी अल्लाह ताला अन्हु कबीला दौस के सरदार और बड़े शायर थे, बड़े शायर थे। कबीला दौस जिस कबीले के हजरत अबू हुरैरा भी हैं, अबू हुरैरा दौसी हैं। तो जब वो मक्का आए, मक्के के लोगों ने कह दिया कि भाई जो भी बाहर से आते थे नहीं, उनको कंट्रोल करने के लिए कान में भर देते, ओ मोहम्मद आए, जादू का असर हो गया, बड़ा शायर है, क्या क्या करते हैं ये पता ही नहीं चलता है, या तो दीवाने के काम करते हैं, या जादूगर का है, या शायर है, या साहिर है, या मजनून है, क्या है समझ में नहीं आता। अल्लाह के वास्ते बात मत सुनो। अब ये भी क्या है, जब मक्का काबे में जाते थे, मक्के के गलियों से गुजरते थे, कान में रुई ठोस लेते थे। क्यों? अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कान में नहीं पड़ना वरना जादू का असर हो जाएगा। एक दिन उसने सोचा, अल्लाह हिदायत देने वाला, एक दिन उसने सोचा अरे मैं खुद बड़ा शायर हूं, बात क्या है, इंसान का कलाम, जादूगर का कलाम, शायर का कलाम मुझे पता है, क्यों ना सुन लो। आइए क्यों ना सुन ले, आप भी, आपको दावत देते हैं, क्यों ना आप भी सुन ले। आए, आने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई हरम के किसी इलाके में, और कहा कि सुना ऐसे ऐसे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे, नमाज में थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, सुनता गया, परेशान हो गया, और कहा कि अल्लाह की कसम ये किसी शायर का कलाम नहीं, मैं बड़ा शायर हूं, मुझे पता है शेर व शायरी ये नहीं होती है। इस्लाम कबूल कर ली, अल्लाह अकबर। हाँ, तुम कितना रोकने की कोशिश करोगे, नहीं रोक सकते हो, शर्त यह है कि तुम आओ, आकर मालूम करो। तीसरा एक वाकया सुन ले, अल्लाह अकबर। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो इस्लाम लाए हैं, आपको भी बता दिया गया था कैसे ऐसे परेशान कर रहे हैं। उन्होंने सोचा चलो आज देखते हैं मोहम्मद का मामला क्या है, आओ आप भी देखो मोहम्मद का मामला क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप भी फिदा होके जाओगे इंशाअल्लाह मुस्तान, आप भी फिदा होकर जाओगे। हाज़िरीन गिरामी, ये है वो लोग जो नबी के खिलाफ कमेंट करते हैं, उनके लिए पैगाम। अब मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, मुसलमानों को क्या करना चाहिए, नबी के उम्मती की हैसियत से क्या करना चाहिए। नबी की उम्मती की हैसियत से नबी पर ईमान, और ईमान का तकाजा और डिमांड यह है कि नबी पर आने वाली बातों का डिफेंस करें। लेकिन कैसे करना, अभी मैंने बता दिया कि आपे से बाहर नहीं, कानून को हाथ में लेकर नहीं, और ना ही दूसरों के दाव पेच में फंस के, जाल में फंस के नहीं, बल्कि कानूनी कार्रवाई करना और बाकी अल्लाह के हवाले करना। अल्लाह देख लेगा, इन्ना कफैना कल मुस्ताजीन, अल्लाह देख लेगा। और अल्लाह ताला कैसे देख लेता वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह आखिरी में। इसीलिए मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। आइए दो मुख्तलिफ जगहों से आयतों के हवाले से पैगाम देते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह हिजर की आखिरी 5 आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो क्या करना है, फस्दा बिमा तुअमर व आरिद अनिल मुशरिकीन। ऐ नबी, आपको जो पैगाम मिला है डंके की चोट कहो, यह आपके लिए पहला पैगाम है। आप इस्लाम, तालीमात इस्लाम, नबी और नबी के रहमतुल लिल आलमीन के रहमत भरी तालीमात को आम करो, बताओ, फैलाओ। अपने अखलाक के जरिए, किरदार के जरिए तुम तौहीद वाले बनो, तौहीद का प्रचार करो, दीन दावत, दावत हक तुम मानो, और तुम भी दूसरों तक पहुंचाया करो। पहुंचाओगे तो फायदा क्या होगा, आगे मैं अर्ज करता हूं।
अल्लाह ने फरमाया इन्ना कफैना कल मुस्तहजीन, ऐ नबी आपकी इंसल्ट करने वालों से हम काफी हैं। अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर, वो लोग जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूदाने बातिला को जोड़ते हैं। फसौफ यअलमून, अन करीब वो जान लेंगे। वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, ऐ नबी हम जानते हैं ये लोग जो आपके खिलाफ बातें कहते हैं, आपका सीना तंग होता है, आपको घुटन होती है, लेकिन आपको करना क्या है? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, आप रब की तस्बीह और तहमीद बयान करो, कसरत से इबादत करो, अकीदे की इस्लाह करो, अमाल सही करो, नेक बन जाया करो, अच्छे अखलाक और किरदार का मुजाहरा करो, व कुम मिनस साजिदीन, कसरत से सजदा किया करो, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, मौत आने तक अल्लाह के सामने तुम इबादत और बंदगी करते रहो। यानी खुद तौहीद के मतवाले बनो, नेकी हुस्न अखलाक दावत हक के पैकर बनो और दावत हक दूसरों तक पहुंचाया करो। फायदा क्या होगा? ये दुश्मनी का माहौल दूर होगा। अल्लाह ने सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 30 से 36 तक फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह को, अल्लाह की तौहीद को मानने के बाद उस पर डट जाओ, जम जाओ। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते ऐसे लोगों पर नाजिल होते हैं, कहते अल्लाह तखाफु वला तहज़नु, खौफ ना खाओ, गमज़दा ना हो जाओ। वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, अल्लाह के जन्नत के बदले में खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया गया है। ये दुनिया और दुनिया की चीजें हेज हैं, तुम्हारे लिए तो जन्नत है, ये मोमिन के लिए बशारत है। नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनियावी जिंदगी में और आखिरत में भी दोस्त रहेंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन, उस जन्नत में तुम्हारे लिए सारा सामान है जो तुम्हारे दिल में ख्याल आए, जो भी तुम मुतालबा करो सब तुमको मिल जाए। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, गफूरुर रहीम की तरफ से मेहमान नवाजी होगी। अल्लाह अकबर। ये पैगाम दिए, ईमान, अकीदा, अखलाक, किरदार, उसके बाद दावत। कहा वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उस आदमी से बढ़ के अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दे। सिर्फ दावत देना नहीं, खुद अमल करना। वो अमिला सालिहा, खुद अमल करता है। तुम नेक बनो, तौहीद वाले बनो, नबी के अखलाक वाले बनो और दूसरों को बताओ इस्लाम क्या है। अपने कौल और किरदार के जरिए से, गुफ्तार के जरिए से बताया करो। हकीकी माने में मुसलमान बन जाओ, तौहीद के पैकर बन जाओ, नबी के सुन्नत के शहीदाई बन जाओ, दुनिया वालों को दिखाओ। सबसे पहले हमारी कोताही है, हमने बताया नहीं, हमने दिखाया नहीं, हमने मालूम नहीं किया, हमने दावत नहीं दी है, ये हमारा कसूर है। इस्लाम को आम करो और इनको बताया करो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम क्या है। क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मुसलमान को देखना चाहते हो मुझे देखो। जिस दिन मुसलमान एक कहने के काबिल बन जाए तो याद रखो उस दिन का नक्शा अलग होगा। क्या अलग होगा? अल्लाह ने आगे फरमाया वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअ, नेकी और बदी दोनों बराबर नहीं है। ये अगर बुरा कर रहे हैं आप बुरे रास्ते पे मत जाया करो। इदफा बिल्लती हिया अहसन, भले तरीके से डिफेंस करो, डिफेंस तो करो मगर भले तरीके से करो। वो गलत तरीके पर है, आप गलत तरीके पे नहीं जाना है। कानूनी कार्रवाई करो, कानून को हाथ में मत लिया करो, आपे से बाहर मत हुआ करो और जो गलती किया सजा उसी को दिलाया करो, किसी और से इंतकाम मत लिया करो। इस्लाम ये कहता है कि देखो वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअ इदफा बिल्लती हिया अहसन फइदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा, तुम्हारे और उनके दरमियान जो दुश्मनी का माहौल है ये दूर होगा। फइदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम, गरम जोश दोस्त बनेंगे ये, बशर्ते के मालूम कर ले। आइए, इनको पता नहीं है, मालूम कर ले गरम जोश दोस्त कैसे बन सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। आइए एक दो मुख्तसर वाक़या आपके सामने रख देता हूं। सही बुखारी का वाक़या है, सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबीला हनीफा के सरदार बनो हनीफा के सरदार, और पकड़े गए। किसी इलाके में वो पकड़े गए, यमामा के सरदार थे और किसी इलाके में मुसलमानों के हाथ में पकड़े गए और पकड़ के लाके उनको रखा गया, मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया गया। सरदार हैं और बड़े मालदार भी हैं,
बड़े ओहदे वाले भी हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा से कहा, सुमामा नाश्ता किए हो, कुछ खाना है? नहीं, मेरे सामने से हट जाइए आप। सबसे ज्यादा नापसंदीदा अगर कोई है आप हैं। सबसे ज्यादा नापसंदीदा शहर है तो मदीना है, सबसे ज्यादा नापसंदीदा लोग हैं तो सहाबा हैं। आप सबके लिए पैगाम है ये, अपनों के लिए, गैरों के लिए, सबके लिए पैगाम है ये। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुमामा रस्सी ज्यादा टाइट हो गई है, जरा ढीली कर दूं? कि नहीं, आप मेरे सामने से जाइए। और यह जुमला बार बार वो कहता था सुमामा। क्या कहता था वो? बार बार कहता था। नबी जब कहते थे मादा इंदक या सुमामा, ऐ सुमामा बताओ क्या तुम्हारी राय है? वो कहते थे इंदी या मोहम्मद, याद रखो ऐ मोहम्मद मेरे पास खैर है। खैर क्या है? माल की लालच दे रहा है, कह रहा है इन तक्तुल ज़ादम, अगर कत्ल करोगे मेरी कौम वाले बदला ले लेंगे, याद रखो। कत्ल करना कर दो, मेरी कौम वाले बदला ले लेंगे, दादम, याद रखो। व इन तुनइम अला शाकिर, अगर तू एहसान करना चाहता है एहसान कर दे, मैं शुक्रगुजार रहूंगा। ऐसा नहीं एहसान का बदला मैं चुकाऊंगा। पैसा चाहिए, का इन कुंत तुरीदुल माल फसल तोती मिनहु मा शित, अगर माल चाहिए कितना चाहिए बोल, उतना दे देता हूं। देखो कैसा गुरूर, नबी के कैदो बंद में है और नबी के सामने इस तरह का गुरूर दिखा रहे हैं, और नबी देखो कितनी हिकमत के साथ काम ले रहे हैं, आप ऐसे बाहर नहीं हो रहे हैं। दूसरे दिन आते हैं, नबी कहते हैं सुमामा क्या कुछ तब्दीली है? नहीं, वही बात। कई दिनों के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा सुमामा को छोड़ दो। सुमामा चंद कदम गए, वापस आए, आने के बाद कहा कि देखो जब मेरा जिस्म आपका गुलाम था, मेरा दिल आजाद हो चुका था, अब दुनिया वाले कहीं ये ना कहें कि जान की डर से इस्लाम कबूल कर लिए हैं, इसलिए मैं अड़ा था कि मैं देख रहा था कि आपका एहसान भी क्या है, चाहता कि आप मुझे आजाद कर दें और मैं अपनी आजादी से, मर्जी से इस्लाम में दाखिल हो जाऊं। चांद कदम आगे गए, आगे जाने के बाद वापस आए और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखो मेरे भाइयों, आप मालूम कर लो ऐसे सख्त नफरत वाले इंसान भी नबी, इफ यू नो हिम यू विल लव हिम, अगर आपको मालूम हो जाए वाकई माने में उनसे मोहब्बत करने लग जाओगे। याद रखिए मेरे भाइयों, मोहब्बत किससे होती है? दानिशवारों ने लिखा है 3 असबाब से किसी से मोहब्बत होती है, ली जमाली वली कमाली वली एहसानी, ली जमाली वली कमाली वली एहसानी, यानी किसी के जाहिरी हुस्न जमाल को देखकर उससे मोहब्बत होती है, किसी के कमालात इतने उनके पास सलाहियत काबिलियत और सलाहियत देखकर मोहब्बत हो जाती है, और किसी के एहसान की वजह से मोहब्बत हो जाती है। और ये तीनों चीजें किसी के पास हो बहुत कम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये तीनों बातें हैं, इसीलिए आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ, कहने वाले शायर अरबी ने क्या खूब कहा है, याद रखो, बलगल उला बिकमालिही व कशफत दुजा बिजमालिही व हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह, बलगल उला बिकमालिही, आपके कमाल, आपके जमाल, आपके एहसान दुनिया में छकी छुपी नहीं है। अल्लाह अकबर। अब आयशा से किसी ने पूछा, बताओ यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत थे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आयशा ने कहा कि बताओ, यूसुफ के सामने वो औरतों ने उंगलियां काट ली थी उनके जमाल के सामने, और मोहम्मद के सामने अरब के बड़े बड़े सुरमाओं ने अपनी गर्दनें कटवा दी। बताओ कि कौन खूबसूरत है, बताओ किनके एहसानात ज्यादा है। को सारा कुरान आप पढ़ लीजिए, अल्लाह ने इतने एहसानात किए, कहीं भी अल्लाह ने नहीं कहा हमने तुम पर एहसान किया है। लेकिन नबी की बेइज्जत के लिए अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, मोमिनों पर अल्लाह ने एहसान किया है। ये नबी के एहसान है, नबी के कमालात, अल्लाहु अकबर, आप गिन गिन के खत्म नहीं कर सकते हो। इसलिए नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। माइकल हार्ट जो गैर मुस्लिम राइटर हैं, जब किताब लिखना शुरू किया द 100, तो सबसे पहले सोच विचार करके उसने कहा, मेरे ज़मीर गवारा नहीं किया
कि मैं पहले नंबर पे इन 100 में से मोहम्मद के अलावा किसी और को रखूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पहले नंबर पे उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। दुनिया के बड़े बड़े बाकमाल 100 आदमी के जिक्र करते हुए याद रखो मेरे भाइयों, वल फद्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत की बात तो यह है कि जिसकी गवाही दुश्मन भी देने पर मजबूर हो। अल्लाह अकबर। याद रखिए, एक आखिरी वाक़या आपको बता देते हैं। हातिम ताई का नाम आपने सुना है ना? बहुत बड़े सखी थे और सही उस वक्त के सही ईसाइयत पर थे। नबी का जमाना नहीं मिला, लेकिन उनके औलाद को नबी का जमाना मिला। उनके बेटे अदी बिन हातिम ताई नबी के सख्त मुखालिफ। ऐसा हुआ जब नबी ने मक्का को फतह किया, आदि का कबीला भी फतह हो रहा था इलाका। क्या किए, ताई कबीले के सरदार थे, बादशाह के बेटे बादशाह थे, वो बड़े मालदार थे। अब डर के मारे में क्यों इज्जत बर्दाश्त बेइज्जती बर्दाश्त करें, भाग निकले। और अदी की बहन नाम है सफ़ाना बिन्त हातिम ताई, वो पकड़ी गई। मुसलमान उनको कैदी बनाकर लेकर आए। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों के पास से गुजरते जब हातिम ताई की बेटी के पास आए, तो हातिम ताई की बेटी बड़े बाप की बड़ी बेटी है ना, उन्होंने कहा, बेहतरीन जुमला कहा हलकल वालिद व हरबल वाफिद। ऐ नबी, अल्लाह के रसूल, बाप का इंतकाल हो गया, भाई भाग गया, अब आपके एहसान तले हैं, एहसान करोगे, एहसान मंद रहेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो कैसे एहसान मंद रहते थे। यानी नबी पर कोई हातिम ताई का एहसान नहीं है, लेकिन गरीबों पर, दूसरों पर उसने एहसान किया, सखावत किया। कहा कि देखो बड़े बाप के बेटी हैं, इनको बाइज्जत अपने कबीले में पहुंचा के आओ। अल्लाह अकबर। अखलाक से मुतासिर हुए। और उसके बाद सफ़ाना ने जाकर अपने भाई से कहा कि भाई तू जैसे सोच रहा है ये मुसलमान और नबी वैसे नहीं है, चल जाके इस्लाम कबूल करते हैं। आ गए, अदी बिन हातिम था, इस्लाम कबूल कर लिए। उनके सामने आए और गले में क्रॉस था। नबी ने कहा इतरा अन कहा दल वसन या अदी, ऐ अदी इस बुत को हटाओ, अल्लाह को छोड़ के जिसकी इबादत हो वो बुत है, उसको हटा दी। इस्लाम कबूल कर लिए। देखो सख्त दुश्मनी थी, लेकिन जब मालूम कर लिए वो दुश्मनी खत्म करके आगे इस्लाम में दाखिल हो गए। तो उमर बिन फारूक अदी बिन हातिम ताई के एक जुमला कहा करते थे, प्यारे जुमला, याद रखो, अरबी का जुमला मैंने नोट किया है। वो कहा करते थे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ आदि याद रखो, जैसे तुम भी इस्लाम में आए, मैं भी आया मुखालफत के बाद, का असलम तू इद कफरू, जब सारे लोगों ने कुफर किया मैं इस्लाम लाया। वो अकबल तू इद अदबरू, जब सारे लोग भाग निकले मैं आगे बढ़ के इस्लाम कबूल किया। वो आफईतु इद गदरू, सारे लोगों ने गद्दारी की मैंने वफादारी की है। वो आरफ्तु इद अनकरू, जब सारे लोगों को पता नहीं चला हक क्या है, इनकार कर दिया, मैं हक से इरफान हुआ। लिहाजा याद रखो, इन बातों को दिमाग में रखा करो। ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो नबी के बारे में गलत बातें कहते हैं। अब आइए आखिर में 2-4 मिनट में मैं आपको बता देता हूं गुस्ताख रसूल का अंजाम क्या होता है, और उनके लिए भी पैगाम। इतना आपको पैगाम देने के बावजूद भी अगर आप नबी की गुस्ताखी पर अड़े रहोगे, अंजाम, इबरतनाक अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आइए मैं आपको नबी के जमाने से लेकर करीब तक आज तक के जमाने से 2-4 मिसाल देकर आपके सामने रखता हूं कि नबी के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना कफैना कल मुस्ताज़ीन, ऐ नबी आपकी इंसल्ट करने वालों को मैं निमट लूंगा, मैं देख लूंगा। आप कानूनी कार्रवाई करो, सजा मिली ठीक है, नहीं तो अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह देख लेगा। अल्लाह कैसे देखेगा? सबसे पहला गुस्ताखे रसूल था नबी का सगा चचा अबू लहब। याद रखो, नबी के खानदान होने से आले बैत में आ जाए जरूरी नहीं है। और मैंने गुज़िश्ता बार बता दिया, खुद जो है हसन बिन अली के हवाले से, हसन बिन हसन के हवाले से मैंने बता दिया। जब उनसे किसी ने पूछा, एक राफिजी ने गुलू किया, उन्होंने कहा कि देखो मेरे खानदान में जो इस्लाम वाले हैं उन्हीं की तुम कदर और इज्जत करो, क्योंकि अगर ये बात ना होती तो नबी के खानदान के बहुत सारे लोग तो जहन्नमी हैं। हाँ, और उन्होंने कहा कि नबी के माँ बाप खुद
یہ حسن بن حسن حسن کے بیٹے حسن کی گواہی ہے، اور حوالہ میں نے دے دیا، گزشتہ جمعہ جا کے آپ سن سکتے ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہے، اگر صرف حسب نسب کی وجہ سے کوئی جنت میں چلے جاتا نبی کے ماں باپ چلے جاتے۔ یاد رکھو اسلام ضروری ہے، ایمان عقیدہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، میں نے حوالہ دے دیا سورہ حجر کی آیت نمبر 93 کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کو یہ اعلان ببانگ دہل اعلان کرنے کے لیے کہا، آپ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر جب اعلان کرنا شروع کیے، سب سے پہلے یا ابو لہب ملعون آیا، انگلی ہلا ہلا کر، ہاتھ ہلا ہلا کر نبی کی انسلٹ کیا، تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے عرش سے آواز دے دی، ندا دے دی، اے ابو لہب تو نے نبی کی گستاخی کی ہے، ہاتھ ہلا ہلا کر، نبی ہلاک نہیں ہوں گے، تو ہلاک ہوگا، تیرا ہاتھ ہلاک ہوگا، تو برباد ہوگا، تیرا مال اور اہل و عیال کچھ کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے گستاخوں، یاد رکھو تمہارے مال و منصب، حسب نسب، عہدہ منصب، حکومت، دولت، ثروت، افراد، اسباب، اقتدار کام نہیں آئے گا جب اللہ کی لاٹھی پڑے گی۔ اس ہوش کے ناخن لے لو، سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو کیا کیا ہے؟ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جسم سڑ گیا، گھر والوں نے باہر پھینک دیا، کب مر گیا پتہ بھی نہیں ہے، کچھ کام نہیں آیا، اور گڑا کھود کے دور سے ڈھکیل کے اس کو داخل کر کے دور سے مٹی ڈال دی گئی ہے۔ یہ برتناک انجام۔ ابو لہب کے دو بیٹے عتیبہ اور شیبہ نے نبی کے چہرے پر تھوکا تھا، ہاں نبی کی دو بیٹیوں کو طلاق دیا تھا، گستاخی کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہم سلط علیہما کلبا من کلابک، اے اللہ تعالیٰ تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو ان پر نافذ کر دیں۔ ایک سفر میں تھے یہ سارے کے سارے، ابو لہب نے کہا کہ دیکھو محمد کی بد دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو سب کے درمیان میں رکھو اور ٹینٹ ایسے راؤنڈ میں ٹینٹ بناؤ تاکہ کوئی جنگلی جانور آ کر میرے بیٹے کو، ان کو بھی تھا یقین تھا دیکھو، لیکن ہدایت کی بات کچھ اور ہوتی ہے، ہاں ہدایت کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک جاہل کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، اور بڑے سے بڑے لکھے پڑھے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایسے ہی کیے، بیچ میں رکھ کر اس کے بیٹے کو سب نے ٹینٹ بنایا۔ رات کے اندھیرے میں ایک بھیڑیا آیا اور کسی کو نہیں نقصان پہنچایا، سیدھا ابو لہب کے بیٹے کے پاس گیا، اس کو چیڑ کے پھاڑ کے چلا گیا۔ یاد رکھو انک فیناک المستہزئین۔ ہلاکو خان کے دربار میں ابن عساکر نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا، ہلاکو خان چنگیز خان کے دربار میں جب وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، ایک مذہبی رہنما کیا کر رہا تھا سن لو، ایک مذہبی رہنما ہلاکو خان چنگیز خان کے دربار میں نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اور وہاں پر ایک کتا باندھا ہوا تھا، کتا غرانے لگا، غر کرنے لگا۔ کہا کہ لوگوں نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، شاید یہ تمہاری وجہ سے گرا رہا ہے، کہ نہیں میری ایکٹنگ کی وجہ سے کر رہا ہے۔ وہ بند نہیں کیا، رکا نہیں، نبی کی شان میں گستاخی جاری رکھا۔ وہ کتا رسی کو کاٹا، لپکا، کوئی اس کو سنبھال نہیں پایا، اور اس گستاخ رسول کے گلے کو پکڑا، جب تک مرا نہیں کتے نے چھوڑا نہیں۔ ابن عساکر اٹھاؤ، ہلاکو خان چنگیز خان کے دربار کا واقعہ ہے۔ انک فیناک المستہزئین، اللہ کافی ہو جائے گا، یاد رکھو اللہ کافی ہوگا۔ قیامت کی صبح تک یہ پیغام ہے، نبی کے زمانے سے لے کر آگے بڑھیں۔ ایسے آپ کو اور واقعہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، ایک غیر مسلم عیسائی تھا یا یہودی تھا، اسلام میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد چند دنوں تک لکھنا پڑھنا آتا تھا، نبی نے اس کو کاتب روحی بنایا، اسلام چھوڑ کے مرتد ہو گیا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگا، کہا کہ نبی پر کوئی وحی نہیں آتی، ہم لوگ جو لکھ کر دیتے وہی پڑھ کے سناتے ہیں، ہاں نبی کی شان میں گستاخی شروع کیا۔ چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، انتقال ہو گیا، اور یہ لوگ کافن میں بند کر کے دفن کرتے ہیں۔ صبح سویرے لوگوں نے دیکھا گستاخ رسول کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، زمین بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا دن ہوا اور ان لوگوں نے کیا الزام لگایا، ہونا ہے محمد ان کے ساتھیوں نے کیا ہے، زیادہ گڑھا کھودے اور دفن کیے۔ دوسری صبح لوگوں نے دیکھا اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، دوسرے دن اور گڑھا کھودے جتنا کھود سکتے تھے، تیسری صبح بھی لوگوں نے دیکھا اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، پرندوں نے نوچ نوچ کے اس کی
की लाश को खाया है, ठिकाने पे नहीं लगा। गुस्ताख रसूल याद रखो, इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़ीन। सही मुस्लिम की रिवायत है, एक आदमी नबी के सामने बाएं हाथ से खा रहा था। आज फैशन बना लिए हैं। नबी ने कहा कि भाई बाएं हाथ से मत खाओ। उसने गुरूर और तकब्बुर के अंदाज में नबी की शान में गुस्ताखी करते हुए कहा, नहीं कर सकता मैं ऐसा। हदीस रसूल की इनकार करने वालों, याद रखो कुरान रसूल के बात सुन लो। नबी ने कहा कि ठीक है तो ऐसा ना कर सक। आन के आनन फानन एट द टाइम, उसी वक्त उसका दाना हाथ नाकारा हो गया और मरते दम तक हाथ मुंह तक लेकर नहीं जा सका। याद रखो मेरे भाइयों, करीब की मिसाल है स्वीडन का वो आदमी जिसने नबी की शान में गुस्ताखी किया, कार्टून बनाया, फिल्में बनाया था, चार बॉडीगार्ड के साथ फिरता था, ऐसे कार के साथ बुलेट प्रूफ ही है, सारा बंदोबस्त किया। आप गवाह है, 2 साल पहले का वाकया है। वो जा रहा था पूरी बॉडीगार्ड के साथ, बुलेट प्रूफ फायर प्रूफ कार के साथ जा रहा था। उसके कार जाकर किसी से टकराई या किसी से पीछे से धक्का मार दिया, जल के राख हुआ। नबी के बारे में खाका बनाने वाला तुम्हारा खाका होगा। तुम्हें नबी के बारे में खाक बनाया और तुम जाकर सुपुर्द खाक हुए, तुम्हारा खाक उड़ा यहां से। इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़ीन। याद रखो, कहने का मकसद यह है मुसलमानों, दिल बर्दाश्ता नहीं होना, अल्लाह के हवाले करो। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं। इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़ीन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की गुस्ताखी करने वालों से अल्लाह काफी हो जाएगा। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको वाकई माने में इस्लाम पर चलने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।